Namaskar, everyone. Welcome to another episode of the podcast. We have a very special guest today, Mrs. Ruchi Bhagat, who recently got selected as a civil judge junior division and judicial magistrate first class in the Maharashtra Judicial Services Examination 2020. What is even more interesting is that she got selected in her very first attempt and became the first judge from her district of Raigad, that too at the age of 25. Uh, well, Ruchi has always excelled in academics. She graduated with BLS LLB from the Government Law College and went on to pursue her LLM in Constitutional and Administrative Law from the Maharashtra National Law University, Mumbai. I will also ask her about that later. But she has always been an all-rounder, and she always apart from, as I said, excelling in academics, she also took up active leadership roles and undertook various community projects as well. So it's my privilege to host you, uh, Ruchi, and soon, you will be on the bench. So I won't have the privilege to be able to record such a conversation. So I'm very happy that you agreed to do this. Welcome to the podcast, Ruchi. Thank you. Thank you for that kind introduction, Shivam. It's so nice to be on the podcast where dignitaries like Ribeiro sir, Pithala sir have spoken. And a month or a couple of months ago, I was the one who was listening to your podcast of Ribeiro sir and Pithala sir. And after 2 months, I am here on your podcast. So it's my privilege and honor to be here. Thank you. Thanks a lot. That's a very big compliment for me. And, I wanted to start by asking you the golden question, which is what was your motivation behind pursuing law? Why law? So I prepared the answer to this question while I was preparing for my JMFC interview because पहला question यही आता था, why law? To be honest, I have seen injustice since my fifth or sixth standard, we can say. My father is a social worker and he used to be a leader of a farmers movement in my native place where illegal land acquisition was taking place. And I remember one incident which was, we can say, the turning point of my life. I was in my seventh standard and we were having a one-to-one meeting with the collector of my district, and in respect of this same illegal land acquisition, and the collector, who happens to be an IAS officer, he was not aware of the land acquisition act. But my father, who was a BCom graduate, he was aware of the act. He was carrying a small bear act with him and he was telling, ये section में ऐसे होता है, ये section करने के बाद ही आप ये notice issue कर सकते हैं. And that IAS officer, he was completely unaware of all those provisions. At that age, when I was in my seventh standard, I saw कि okay, जिसको law पता है, he seems to be more powerful. He seems to have command. He seems to help people in with the help of that legal knowledge. So तभी decide किया था कि आगे जाके law करना है. Wonderful. And you got into one of the oldest law colleges in Asia, the Government Law College. So, how was life at GLC if you had to, share some of your experiences of the 5-year journey that you undertook? To be honest, till my 12th standard, I wasn't aware of GLC. इतना पता नहीं था कि कैसे होता है admission procedure, या फिर a small town girl like me can get an admission, or in GLC was literally like पता ही नहीं था बिल्कुल भी. After my 12th, I got to know about this college. Then बहुत research किया and then I was like बस admission चाहिए तो इधर ही चाहिए. Like Lokmanya Tilak and B.R. Ambedkar happens to be our alumni. So it was like even my grandfather still tells everyone कि ही आंबेडकरांच्या कॉलेजमध्ये शिकली आहे, टिळकांच्या कॉलेजमध्ये शिकली आहे. So that was something कि I was mad
कि या आई वांट टू गेट इन जीएलसी एंड थैंकफुली फर्स्ट लिस्ट में तभी एडमिशन हो गया था. So NSS helped me a lot to boost my confidence to speak in front of people. The street plays which we were able to participate through NSS, various competitions, and उसके वजह से बाहर के colleges के साथ mix होने का मौका मिलता था. So all these connecting with people, leadership skills were developing in my first year, and along with that, I can surely say that Duffel sir, More ma'am, Jadhav sir, who were my first year professors, they made life a bit easier in GLC. And also, last but not the least, my very own seniors, Samyak Dada, yeah, we call them sir and ma'am, but still I call them Dada and Didi or Bhaiya or Didi because they are that close to me. So Samyak Dada, Kranti Tai, Anupama Tai, Priyanka Tai, all these seniors were the what I can say backbone behind me getting established in GLC in my very first year, because securing a third rank in first year was like boosting confidence कि okay हमारा भी कुछ हो सकता है. इतने साल जो अलीबाग में या छोटे टाउन में मेहनत की है वो यहाँ भी we can establish ourselves. And then in my second year I was heading a complete committee. NSS की मैं head थी. मराठी मंडल में I was assistant general secretary, and स्नितिक करके हमारा cultural fest हुआ करता था तभी, उसकी भी मैं core committee में हुआ करती थी. So that helped me a lot in boosting my confidence, in building good tie-ups with all the professors in GLC. So today also when I go or visit GLC, all the teaching and non-teaching staff, I can see a small smile on their faces. So that is enough, I can say. Yeah, that was like there are sweet and bitter memories in GLC. I cannot say all are all are sweet memories because many a times कुछ financial issues होते थे, because all the 5 years when I was in GLC, my mom was undergoing chemotherapies all the 5 years. So there are sweet and bitter memories, and also various good or bad experiences which we can say, but all of them helped me a lot in achieving this position where I am today. That's wonderful. And I wanted to bring to the viewers' attention about your transition from first being a UPSC aspirant to now to later undertaking the journey of sitting for the judiciary examination. Can you explain on that? Yeah. So अभी शायद सबको लगेगा कि मुझे पहले से ही जुडिशियरी में इंटरेस्ट था या मैं जुडिशियरी ही करना चाहती थी, but it is not true. Since my 7th standard, I always wanted to be an IAS officer. So from like when I was in 7th or 6th, I don't remember. My class teacher Shruti Bondre, she showed us a speech of Mr. Vishwas Nangre Patil. That was the first time when I saw him on a big screen on a projector in our school. So all the 50 students of my class, and there was a huge projector, and we saw his speech. And at that time, we got to know about these UPSC and MPSC exams. So तभी decide किया था कि yes, sir is my idol now, and I want to become an IAS officer. In 4th year when I was in GLC, in my 4th year I gave my first attempt of UPSC, but prelims clear nahi hui the, to be honest. By very few marks I failed in UPSC prelims. I started preparing for my last semester in GLC and also for my second attempt in UPSC, but my mom expired in the same year. So thoda like what I can say, एक low patch शुरू हुआ था life में at that time. And I got placed by the GLC placement committee जो हमारे college में है. So I got placement through our college in Talekar and Associates. So by that time I decided कि okay, I'll practice and I'll study UPSC side by side. I'll do both. But we all know, once we get into practice, we don't get much time to prepare for such exams. Within a span of a month, I left my practice with Talekar and Associates. I came back to my hometown, Alibag. I established Disha Foundation, which still works today, where we started counseling students about all these UPSC, MPSC, Army, Navy exams.
And while doing those counseling sessions, I started preparing for these competitive exams again with new energy, with new timetables, new all that setup. And in August, I suddenly got to know that I was shortlisted for Judge Advocate General exam of Indian Army, for which I had to go to Bangalore. And उसमें भी out of 400 students throughout India, I got selected in the top 36, which we stayed there for 5 to 6 days. हमारी 5 days एग्जाम हुई थी, अलग अलग मेडिकल, फिजिकल, रिटर्न एग्जाम्स, बहुत अलग अलग टाइप के एग्जाम्स हुए थे. जो एसएसबी होता है, सिलेक्शन बोर्ड होता है, उनके वाइस प्रेसिडेंट ने तभी मेरा इंटरव्यू 20-25 मिनट्स तभी इंटरव्यू लिया था. ये मैं अभी क्यों बता रही हूँ, उसका आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगी. But in that also, in my first attempt of JAG, I failed in my physical attempt. I was not able to jump from certain height because of my height phobia. So usme bhi I failed. So first attempt of UPSC failed, first attempt of JAG failed. And when in November I came back to Alibag, I saw this notification of MPSC ki JMFC एंड CJJD's पोस्ट का नोटिफिकेशन आया है, एंड मार्च में प्रिलिमिनरी एग्जाम होने वाला है. So my husband always wanted me to think about judiciary. He was like, you have your notes prepared, you have your concept clear, you should think about this. And I always used to I always used to tell him कि मुझे नहीं जाना यार उधर, मेरा IAS ही है, उधर ही जाना है. एंड मुझे तो कैसे एग्जाम्स होते हैं, मैंने तो आज तक क्वेश्चन पेपर्स भी नहीं देखे. दिस इज लाइक लिटरली द ट्रुथ. हाँ, ट्रुथ. बट इन नवंबर आई थॉट कि ओके चलो ये नोटिफिकेशन आया है, अभी कुछ नहीं, ये तो करके देखते हैं. एंड आई so this was a journey from UPSC to JMFC judiciary. Yeah. What a wonderful journey. And, that really shows your inherent strength, resilience, and focus. And I think these are the qualities I'm sure all the students who are watching, specifically, UPSC or judiciary aspirants, will get inspired by. I also want to ask you about COVID in all of this, because as I can see, you got selected this year, you're going for your training in the month of August, but you gave your preliminary exam in 2020? Yeah, 2020. So, how did you manage this time, and how big of a factor was COVID in all of this? Because I'm sure there would have been some uncertainty and, about the future. All of us face that situation. So how did you keep yourself, at it, focused and motivated? So as I told you, November में मैंने notification आने के बाद form fill किया था, and in November 2019. 19, yeah, November 2019 में नोटिफिकेशन आया था. दिसंबर में फॉर्म फिल किया, एंड दिसंबर में आई गॉट टू नो कि पुणे में ऐसे करके लॉ क्लास, मतलब क्लासेस है जो जुडिशियरी एग्जाम्स के क्लासेस लेते हैं, BE अवार्ड लॉ क्लासेस करके है. एंड इट हैपेंस कि हमारा ही जूनियर है संग्राम करके, ही टोल्ड मी कि दीदी आपको जाना है, यू शुड गो दिस फॉर दिस क्लासेस. I'm like, okay, I inquired about those classes, and classes का batch 3 months का होता है, वो already शुरू हो चुका था दिसंबर में. I didn't get admission. Then I don't know कि universe wanted me to go there. So sir ने all of sudden एक 1.5 month की, like 45 days की एक batch, all of sudden he started, and I got admitted in that batch on January 15th. So January 15th, 2020, I started my UPSC prelims preparation. Literally on that day, I started preparing for my prelims. And 15th January to 28th of Feb, I prepared for my prelims. On 2nd March, I gave my prelims. So in 45 days, I prepared for my prelims. रिजल्ट आया, कट ऑफ आया. आई वॉज प्रिटी श्योर, क्योंकि पेपर बहुत ईजी था, कि प्रीलिम्स तो हम क्लियर होने वाले हैं. एंड विद इन अ वीक कोविड वॉज लाइक, न्यूज आ रहे थे कि ऐसे करके होने वाला है, फर्स्ट लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन. But by that time, through these BE award law classes, we were practicing answer writing घर पे ही, because classes तो तभी हो नहीं रहे थे. तो sir used to post one mains question daily, and we used to prepare answers of those questions. So after giving prelims in March, August में prelims का result आया था. 11th August को prelims का result आया था कि okay, prelims अभी clear हो गए हैं, you can now
apply for mains. तो अगस्त में रिजल्ट आने की वजह से तभी फर्स्ट वेव खत्म हो रही थी ऑलमोस्ट. वी वर होपिंग कि दिसंबर में हमारा मेंस एग्जाम हो सकता है, तो तभी मेंस का प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा शुरू किया था. और अगस्त इन द मंथ ऑफ मई मैंने क्लैट का पीजी का एंट्रेंस के लिए एप्लीकेशन किया था. सो आफ्टर माय अगस्त इसका रिजल्ट, प्रीलिम्स का रिजल्ट, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माय क्लैट व्हिच हैपेंस टू बी ऑन 24 सितंबर उस साल हुई थी. सो वो भी कोविड में पूरा पीपी किट वगैरह पहन के आई अपीयर्ड फॉर माय क्लैट एंड विद इन अ मंथ आई गेस आई गॉट एडमिटेड इनटू एनएलयू मुंबई. This is all So in 2020. 2020, yeah, it's all in 2020. So in October 2020, I started my NLU, like LLM in NLU Mumbai in constitutional law, and side by side I was preparing for mains with the hope कि December या Jan में mains हो जाएगी. मेरा LLM खत्म हुआ in July 2021 and मेंस का नोटिफिकेशन आया कि ओके नाउ इन सितंबर ऑन 24th आई गेस आपका मेंस एग्जाम होने वाला है. सो आफ्टर ऑलमोस्ट ईयर एंड अ मंथ हमारा मेंस का एग्जाम हुआ इन द नेक्स्ट ईयर. सो व्हेन आई फिनिश्ड माय एलएलएम मेंस हुआ हमारा एंड तभी सेकेंड वेव था. ऑलमोस्ट सेकेंड वेव खत्म हो रहा था. But as our papers are checked by judges and senior members, there was a possibility कि हमारे वजह से उनको इन्फेक्शन हो सकता है या हमारे पेपर्स थ्रू इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है. सो मेंस के 10 दिन पहले नोटिफिकेशन आया था कि मास्क और ग्लव्स पहन के पेपर लिखने हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे मुझे 1-1.5 साल मिला था टू प्रिपेयर फॉर मेंस. आई वाज प्रिपेयरिंग, लाइक आई वाज परस्यूइंग माय एलएलएम एज वेल. सो थोड़ा मेरा व्हाट आई कैन से इतना ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं था टुवर्ड्स माय मेंस. आई वाज फोकसिंग ऑन माय डिसर्टेशन, एलएलएम, एलटीपीज एंड ऑल दोस असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स विद माय LLM. सो LLM का खत्म होने के बाद 5th अगस्त को नोटिफिकेशन आया कि 24 सितंबर को मेंस होने वाली है. उस दिन ऑनेस्टली मेंस का प्रिपरेशन शुरू हुआ. सो वो 50 डेज मिले थे मेंस के लिए, सुबह से शाम तक बस राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि एलएलएम पूरा लैपटॉप पे हुआ था, ऑल असाइनमेंट्स टाइप्ड एंड रिसर्च पेपर टाइप. सो राइटिंग प्रैक्टिस पूरी खत्म हो गई थी. So पूरे 50 days I was continuously writing and writing and writing all those answers for mains examination and practicing previous year question papers, judgment writing ki practice. I was completely doing that. And 10 days before my mains exam notification, you have to write with gloves. एंड दोज रबर ग्लोव्स का प्रॉब्लम ये है कि आप स्पीडीली लिख नहीं पाते एंड योर हैंडराइटिंग बिकम्स हैंडराइटिंग लाइक अ डॉक्टर. लाइक नो ऑफेंस बट एटलीस्ट रीडेबल हैंडराइटिंग तो होना चाहिए पेपर में. but I was like, okay, we don't have to get panic now, we have to mentally prepare ourselves. तो घर में सुबह शाम मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के I was practicing. I literally have the photo also कि I am writing with a mask, solving question papers with mask, क्योंकि मास्क का वेपर आता था इस स्पेक्स पे, ग्लव्स की वजह से स्पीड स्लो हो जाता था. तो ये सब लाइक ये पूरा कोविड का इफेक्ट था. बट थैंकफुली एग्जाम के टाइम इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, तो ग्लव्स पहन के लिखना नहीं पड़ा था पेपर. बट या कोविड ने पेशेंस बहुत चेक किया एक्सट्रीमली, क्योंकि होप्स ही नहीं थे कि मेंस एग्जाम होगी. फॉर द फर्स्ट टाइम लाइफ में प्रीलिम्स क्लियर हो गए हैं, लेकिन मेंस होगी या नहीं ये पता नहीं था. एंड वी कैन नॉट ब्लेम एनीवन फॉर ऑल द थिंग्स which were going around the world. But the most important thing which happened, I can say a positive note, is PCGT came into my life during COVID, and that helped me to like build an entire different vision and new ideas. It kept me moving and kept me updated even in times of COVID. घर पे थी, but I was like updated with all those things. I wasn't negative. I can surely give the credit to Rekha ma'am, Raja sir, Ribero sir, who were like always boosting the confidence and spreading positivity in the times of COVID. Yeah. Absolutely. And that, I'm glad you didn't have to actually wear the gloves while writing the paper. So I, now want to focus on, before I ask you, actually this one thing, since you have already spoken about
to a certain extent about your preparation. I wanted to focus more on that first. So, for the preliminary examination of the Maharashtra Judicial Services, and I'm asking, as you said in the beginning before, that any law student should start at the earliest. So, what would you like to tell them if their focus is to crack the prelims of the judiciary exams? Yeah, you have to, if you want to crack the prelims, you have to be thorough with your bare acts. Almost all there are 12 subjects which we have to study for prelims, including constitution, CPC, CRPC, evidence hai, specific relief hai. All those subjects you have to be thorough with the bare act, all the conceptual clarity कि उधर and है, rash और negligent act है या rash and negligent act है. ये and और पे भी MPSC का question हो सकता है. So like इतने minutely हमें पूरा law पता होना चाहिए. And that once you prepare it in this minute details for your prelims, आपका interview के लिए डायरेक्टली प्रिपरेशन हो जाता है, क्योंकि कहीं से भी ट्विस्ट एंड टर्न करके दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस. बट इफ अभी से अगर हम माइन्यूटली प्रिपेयर करना शुरू करते हैं तो इट विल हेल्प देम. एंड द बेस्ट पार्ट इज व्हाइल इन GLC or in any law school, you are studying 4 subjects at a time. You have 6 months of time span for one semester and 4 subjects. So sufficient time to focus on each subject and to study each subject minutely, rather than just opening the we had those namitas in our time. Namita karke choti book aati thi, everyone used to read that or the Japala, and then you used to go to the exam. But rather than just be familiar with your bare act, reference books किधर क्या है हमें पता ही होना चाहिए. Same is with constitution, the criminal. Like I would love to share one picture with you. पूरा IPC के 511 sections मेरे wall पे आज भी stick है. Like not bare act का sticking. मैंने हाथ से पूरा creatively एक wall बनाया है IPC wall करके. एंड सिर्फ एक सेक्शन नंबर 1 उसमें क्या लिखा है, इन 2 or 3 वर्ड्स समरी ऑफ ईच सेक्शन इन अ फॉर्म ऑफ सन और फ्लावर, सो दैट जितने क्रिएटिवली आई कैन make it. So this is going to help you crack it in first attempt, I can surely say. And what about the mains? How did your strategy change? Because as you mentioned, you were mentally prepared even to write, in the class, and you practice day in and day out. So answer writing, as you said, would certainly help. What are the other, factors that you would tell the students to focus on? So when अगर अभी 2 जुलाई को ही प्रीलिम्स हुई है, आपने मेंस हुई है जुडिशियरी की, तो वो भी अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं तो पेपर एकदम इजी है. पेपर 1 मैंने देखा है, बहुत इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं सारे. द ट्रिकी पार्ट और व्हाट वी कैन से द टर्निंग पॉइंट इज व्हाट वी राइट. लॉ कॉलेजेस में हमें आदत होती है कि हम 6 पेजेस आंसर लिखते हैं, 12 पेजेस आंसर लिखते हैं. We like feel the supplements. In judiciary it is not the case. You are given a supplement of 48 pages और उसी में आपको judgment writing and all these questions you have to accommodate in that 48 pages की supplement. So the important part is आपको ऐसे आंसर बनाना है कोई भी कंसेप्ट का कि अगर उस पे 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो भी you can write, 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो भी you can write. So you have to know कि important क्या है, because in law school while in GLC I had 4-5 case laws of each topic with me, because case law के marks मिलते थे GLC में, to be honest. This is not the case here. You have to focus on the section, उसके plus minuses, the connectivities, like IPC में जो section है उसका evidence में क्या connection है, उसका CRPC में क्या connection है. सो ये जो कनेक्ट, या फिर उसका SC/ST एक्ट भी है हमें अभी, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उन सब के जो कनेक्शन है, इंटरलिंकेजेस है, दीज आर गोइंग टू फेच यू मोर मार्क्स. ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन कि मेरी एक 100 पेजेस की अलग नोटबुक रेडी थी जिसमें IPC, एविडेंस और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सिर्फ डिफरेंस बिटवीन रेडी थे. Only difference between in a 100 pages notebook, all the concepts कि okay इन दोनों में difference between आ सकता है, like sedition and defamation दोनों में आ सकते हैं. So ऐसे सारे पूरी एक नोटबुक बनाई थी, and
गॉड्स प्रेजेंस और यूनिवर्स वांटेड CRPC, लाइक पेपर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन में चारों डिफरेंस बिटवीन ही आए थे, एंड दोज वर रेडी इन माय नोटबुक, सो आई वाज एबल टू विजुअलाइज कि मैंने किधर लिखा है, क्या लिखा है, एंड देन आई वाज एबल टू क्या होता है उससे राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं होता है, स्पीड स्लो नहीं होता है, बिकॉज ऑलरेडी हमने वो लिखा हुआ होता है. So that helped me a lot. And one more thing is, um, when we are going to prepare answers for such exams, उसमें खुद का कुछ इनपुट आना चाहिए, क्योंकि 498A पे अगर आ रहा है तो everyone is going to write all the essential ingredients of that offense. What is your input, or what is your idea or your view on that, or that is going to give you one extra mark, and you never know that one extra mark can give you above cutoff or below cutoff marks. So that way, that is going to help. So let's say you get a question of an 8 marks on a 498A. How would you tell the aspirants to write a model answer? Like, what are the, like in college we used to write introduction, conclusion, these cases. I'm sure that won't work. So you can. So what I can say, model answer happens to be in this way. So firstly 498 deals with what you'll write it about it. क्या IPC का 498 section इसके बारे में बात करता है. Okay, then it is not compulsory that you have to write the section exactly in those words. I am very bad at memorizing these things, so it doesn't matter कि आप उन्हीं बेयर एक्ट के लैंग्वेज में ही लिख रहे हो. You can explain that section in your own words. So for example, theft है, अगर उसके 5 जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, टेकिंग डिसऑनेस्टली आउट ऑफ पोजीशन, ये जो 5 इंग्रेडिएंट्स है वो आते हैं, आप ओन वर्ड्स में लिखते हैं, या यू विल गेट मार्क्स. सो वो जो बेसिक जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है वो आप लिखेंगे वो सेक्शन में. उसके बाद उसका जो लिंकेजेस है, तो 498 का देखेंगे तो एविडेंशियरी वैल्यू भी उस एविडेंस में भी उसका लिंकेज है, CRPC में लिंकेज है, तो वो लिंकेज आप बाद में लिखेंगे. तो ये हुआ कंप्लीट आंसर, कंप्लीट एंड प्रिसाइज. अगर हमारा जैसे होता है कि 6 पेजेस 7 पेजेस देन ओनली यू विल गेट मार्क्स, नो, इवन इफ यू राइट 1 पेज और 2 पेजेस सफिशिएंट. पेज का कोई भी लिमिट नहीं होता, क्योंकि अभी भी मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं कि मैम कितने पेज के आंसर्स लिखने हैं. तो हमें सर हमेशा यही बताते थे कि आंसर प्रिसाइज कंप्लीट होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए. So that is my advice to the students. That's great. So now let's proceed to the interview. and and I want to start from the beginning. So you gave your mains, okay? And like, what was your feeling after that? And when you got your call, for the interview, how did you react? And what was your preparation after that like? So like mains का ऐसे हुआ था. I would like to tell the students एक और बात about health. बहुत important है when you are preparing for such exams, क्योंकि reporting timing बहुत सुबह का होता है, and you have to reach. हम बहुत लंबे like I was staying in Alibag and फिर I came to Panvel one day previous to my exam and then travel. So ये जो traveling का भी time होता है वो आप कैसे utilize करने वाले हो, उस सब में health का कैसे ध्यान रखने वाले हो, दोनों प्रीलिम्स मेंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि मेरा क्या हुआ था, मेंस के पहली रात मैं सोई नहीं थी. आई वाज़न्ट एबल टू स्लीप एट ऑल. सुबह 3 बजे उठ के CPC पूरा रिवाइज करना था. दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक, बिकॉज मैं सुबह 3 बजे उठी, आई रिवाइज CPC, जो पढ़ा वो पेपर में आया. पेपर 1 एकदम प्रॉपरली आई वाज एबल टू फिनिश. पेपर 1 के बाद मैं आई, लंच किया, एंड आई वाज रीडिंग पेपर 2 का रिवीजन जो भी करना था वो हुआ. एंड जैसे दोपहर के 3 बजे आई सडनली रियलाइज कि ओके, मैं लास्ट के 12 घंटे आई हैवंट स्लेप्ट, और मैं जगी हूँ. मेरी पूरी एनर्जी तभी ड्रेन हुई थी, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही थी जब मैं पेपर 2 लिख रही थी. तो मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा मेंटल
हो जाता है ये, ऑब्वियसली मेंटल एस्पेक्ट भी तभी आता है। तो कितना भी ट्राई करूँ, आई वॉज टॉकिंग टू माई सेल्फ, गिविंग सेल्फ अफर्मेशंस ऑल द टाइम कि ओके इधर तक आए हैं, अभी करना ही है। तो ये हेल्थ फैक्टर जो है दोनों एग्जाम्स के लिए, प्री एंड मेंस के लिए, ये बहुत ज्यादा काउंट करता है। तो जो मैंने मिस्टेक की है कम सोने की, वो आप प्लीज मत करो। हैव प्रॉपर डाइट, प्रॉपर फूड, बी हाइड्रेटेड एंड प्रॉपर स्लीप। बिकॉज 3 घंटे में आपको 3 महीने की पूरी स्टडी व्हाट वी कैन से प्रेजेंट करनी होती है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मेंस होने के बाद जब मैं घर आई, आई वॉज प्रिटी श्योर कि मेंस क्लियर होने वाले हैं। बट सितंबर में मेंस होने के बाद फेब में मेरा रिजल्ट आया in 2022. So it was the third year, 2020, 2021 and now 2022. I got my mains का result and I got the letter कि I am qualified for the interview. तभी date पता नहीं थी कि कब interview होने वाला है. I was actively working with PCGT during that time because December तक हम online ही काम कर रहे थे. अब like after December जैसे ही हमें on field की permission मिली, हम फुल फ्लेज तभी सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे. सो आई वॉज स्टिल, मेंस का रिजल्ट आया फिर भी आई डिडंट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माय इंटरव्यू, टू बी ऑनेस्ट. सर से बात की, सर ने सेशंस लिए कि क्या क्या प्रिपेयर करना होता है. सो अपार्ट फ्रॉम दीज 14 सब्जेक्ट्स व्हिच वी स्टडी फॉर प्री एंड मेंस, देयर आर अराउंड अबाउट 10 or 15 न्यू एक्ट्स, डिफरेंट एक्ट्स जिसपे क्वेश्चंस आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू होल्ड दैट पोजीशन एंड वो उनके जुरिस्डिक्शन में आता है. सो फॉर एग्जांपल डीवी के मैटर्स होते हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के मैटर्स होते हैं, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सिविल जज के पास आते हैं. सो यू आर लाइक, यू शुड नो ऑल दोज लॉज. एंड हम इतना फोकस नहीं करते, या डीवी तो हमें सिलेबस में भी नहीं होता है, लॉ के सिलेबस में भी नहीं और इधर भी नहीं होता है. सो ऐसे 10 to 15 डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे जो इंटरव्यू के लिए स्पेशली प्रिपेयर करने थे. तो मेंस का रिजल्ट के बाद मैंने वो प्रिपेयर करना शुरू किया था. खुद के स्टेट की पूरी इंफॉर्मेशन, खुद के डिस्ट्रिक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन, मेरा तालुका, मेरा विलेज, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड एवरी डिटेल. ग्राम पंचायत का सरपंच कौन है, कलेक्टर कौन है, नगर सेवक कौन है, कौन सा वार्ड है, all the details of our state, Maharashtra, rivers, mountains, because I happen to stay in Raigad, which have a coastline. So कितनी लंबाई की coastline है, fort है, उसका history क्या है. तो ये जो सारी details है, ये मैंने तभी प्रिपेयर करना, तभी आई मेड अ नोटबुक एंड ये सारी डिटेल्स तभी मैंने प्रिपेयर की थी. लेकिन हमारा 8 मार्च का विमेंस डे का इवेंट हुआ. I was at CST and I got the notification कि 14th मार्च को मेरा इंटरव्यू है. एंड उस दिन टू बी ऑनेस्ट, मेरे ये जो मेन 14 सब्जेक्ट्स हमने जो प्री और मेंस के लिए प्रिपेयर किए थे, उसकी 0 रिविजन थी. जो मैंने मेंस के लिए बुक्स बंद की थी, वो मैंने बिल्कुल बिल्कुल खुली नहीं थी. सो वो जो 5 days मुझे मिले फ्रॉम 8 लाइक 9th to 14th को इंटरव्यू था. सो 9th 10th 11th and 12th and 13th, उसमें दिन रात बस वो सब्जेक्ट्स का रिवीजन किया, यूट्यूब की हेल्प ली, क्योंकि कुछ कुछ जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके छोटे छोटे यूट्यूब वीडियोस होते हैं. So rather than reading, you can just while traveling, you can hear to those videos and revise those topics. So we can say थोड़ा smart study की तरफ ध्यान दिया. 5 ही दिन थे तो पापा को, हस्बैंड को बोला कि प्लीज पूरे लास्ट 5-6 months के न्यूज देख लो और इम्पोर्टेंट न्यूज है वो मुझे आप एक 2 दिन पहले आप बता दो, बिकॉज मेरे पास उतना टाइम नहीं था टू गो एंड रिवाइज ऑल द करंट अफेयर्स. लीगल करंट अफेयर्स एसे के लिए प्रिपेयर किए थे, तो वो ज्यादा प्रिपेयर करने की अभी जरूरत नहीं पड़ी थी. सो ये 45 days में प्रीलिम्स, 50 days में मेंस एंड 5 days में ये पूरा इंटरव्यू का प्रिपरेशन हुआ. एंड 14th मार्च को 1 बजे इंटरव्यू होने, मतलब 1 बजे इंटरव्यू शुरू होने वाले थे. जस्टिस एसके शिंदे सर का और जस्टिस डांगरे मैम का पैनल था. 2 पैनल्स थे, पता नहीं था किसको कौन सा आएगा. तो दोनों के रिसेंट जजमेंट्स, उनके बारे में ये सब पढ़ के गए थे हम लोग ऑलरेडी. बट स्टिल थोड़ा वी आर गोइंग टू फेस, और मेरी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है.
जीरो प्रैक्टिस, तो जज को फेस करना वगैरह तो एक्सपीरियंस था ही नहीं मुझे, तो बहुत ज्यादा व्हाट आई कैन से कॉम्प्लेक्स था, थोड़ा नर्वसनेस था, क्योंकि 30 एस्पर कैंडिडेट्स का उस दिन इंटरव्यू होने वाला था, तो वी वर सिटिंग इन दैट हॉल, ऑल द excluding me, all the 29 candidates were not of my age. कुछ कुछ बाल्ड थे, दे वर मैरिड वुमेन, एंड मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स आया कि मैं इतनी छोटी हूँ, मेरा क्या होगा इन लोगों के सामने, उनकी इतने सालों की प्रैक्टिस है, everyone was having their bare acts with them, all those procedural codes and everything with them. I had my one small notebook जिसमें मेरा पूरा इंटरव्यू का नोट थे जो स्पेशली इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किए गए थे शॉर्ट में, वो मैं पूरा दिन पढ़ते बैठी, क्योंकि 1 बजे का इंटरव्यू 4 बजे शुरू हुआ, वो मंडे था, तो कोर्ट में काम खत्म करके आने में पैनलिस्ट को थोड़ा टाइम हुआ, तो इंटरव्यू 4 बजे शुरू हुआ, तो ऑलरेडी 3 साल कोविड ने पेशेंट्स चेक किया था, और 4 घंटे पैनलिस्ट ने पेशेंट्स, पूरा एमपीएससी ने हमारा उस दिन पेशेंट्स चेक किया था। इंटरव्यू से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उधर, सो आपके 10th स्टैंडर्ड से एलएलएम तक या एलएलबी तक जो भी आपका क्वालिफिकेशन आप मेंशन कर रहे हैं, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां लेके जाना होता है। एंड बिकॉज व्हाट आई कैन से उनका वही काम है, वो थोड़े ना इरिटेट हो जाते हैं कभी कभी, दोज गवर्नमेंट सर्वेंट्स आई कैन से, सो so तभी we have to make sure कि we are not losing our patience and our calm. वो कितने भी इरिटेट हो, कैसे भी आपके डॉक्यूमेंट्स इधर उधर करे, आपसे किसी भी टोन में बात करे, यू हैव टू मेंटेन योर पोस्चर, यू हैव टू बी काम एंड आंसर टू देम, क्योंकि ये होता है मेरे आगे, मतलब मेरे पहले वाले रोल नंबर के साथ भी हुआ था, उनका झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, तो उससे क्या होता है, निगेटिविटी आना शुरू हो जाता है हमारे दिमाग में, सो वी हैव टू मेक श्योर कि वी आर okay with ourselves, we are maintaining our we are of self. I was completely working on self affirmations on that day, and at 4:45 I went in for my interview in front of Justice SK Shinde sir and MPSC के एक panelist थे तभी. I went in, may I come in sir? I went in, I was sitting there, and first question he asked me, the MPSC panelist, he asked me की तुम्हाला असं नाही वाटत का की तुमचं शिक्षण जास्त झालंय, तुम्ही एलएलएम पण केलंय, that you are over qualified because the minimum qualification for this exam is LLB and you have done your masters, so don't you think that you are over qualified? I just gave a small smile and I said ki sorry sir, but I don't think so that I am overqualified for this post. To be honest sir, lockdown में करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने LLM कर लिया, घर बैठे ऑनलाइन LLM हो गया. And second thing is my love for constitution. I am madly in love with constitution. I love to explore the minute details and the language in which it is written. I like to make it easy for the layman, so that made me pursue my LLM, and sir, it helped me develop an analytical and critical approach towards our constitution and the policies. So it convinced them, and no, like no supportive question or उसके आगे कोई वो related question नहीं था. The second question they asked me was in Marathi, and literally sir said, "बाळा तुझा छंद काय?" बाळा was like, I was like okay इतना, क्योंकि बहुत डरी हुई थी मैं कि कैसे होगा, क्या होगा, कितना formally होता है. So he asked me about my hobbies, and as most of my friends and family members know, I like to recite poetry and I like to do poems in Marathi. So मैंने वो बता दिया, and मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि शिंदे सर को भी, जस्टिस शिंदे सर को भी पोएट्री में दिलचस्पी है, बिल्कुल पता नहीं था. And for next 5 minutes we were like having a normal conversation on Marathi poets and poetry. एकदम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, लाइक how we can say कि गप्पा मारत होतो आम्ही, बातें कर रहे थे बस. Did he tell you to recite any one of your poems? Yeah. He asked me to recite one of my poem, and जो मैंने SSB बेंगलोर का आर्मी का एग्जाम्पल दिया था शुरू में, वो यहाँ काम आया, क्योंकि मुझे बेंगलोर में
वहाँ जो बोर्ड के प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि आपकी हॉबी पोएट्री है। मैंने बोला यस सर। तो अभी मुझे 4 लाइन्स आप पोएम बना के दिखाओ। तो दैट एक्सपीरियंस आई वाज लाइक, वहां हो सकता है तो यहाँ भी हो सकता है। सो आई वाज रेडी कि ओके, आई लर्न माय वन ऑफ माय पोएम एंड देन आई गो फॉर द इंटरव्यू। ऑल्सो पोएट्री है तो मराठी पोएम्स बोला मैंने, तो मराठी के फेमस पोएट्स कौन है, तो पेन नेम बताया, तो उनका रियल नेम क्या है, रियल नेम का मीनिंग क्या है, उनको अवार्ड्स कौन से मिले, उनकी फेमस पोएम्स कौन सी है, तो फेमस पोएम, उनकी फेवरेट पोएम कौन सी है। तो मराठी में कणा करके एक पोएम है विच इज अबाउट व्हाट वी कैन से सेल्फ एस्टीम। That poem is about self-esteem. So he asked me the meaning कि why you like this particular poem. So he wanted to check कि मुझे वो poem का real मतलब भी पता है या मैं बस ऐसे ही learn करके आई हूँ and बता रही हूँ. Then See, he can asked me, you, sorry to interrupt, but if you could share that with the viewers and also explain to them that meaning, I think that will be amazing. yeah. I'm also, yeah. So in Marathi there is a poem called Kana. Okay, Kana is our spine, backbone. Okay, and the gist of that poem is there is a student जिसके घर के इधर बाढ़ आई है, फ्लड, एंड उसकी वजह से उसका पूरा संसार जो है वो पानी में बह गया है. ही इज नाउ डिमोटिवेटेड और ही इज नाउ सैड बिकॉज ऑफ ऑल दोज हैपनिंग. he goes to his teacher sir and explains कि सर ऐसे ऐसे सब हुआ है. सर को स्टोरी बताता है कि सर पानी आया घर में, सब जो भी संसार था वो बह गया है. What the sir does, sir thinks कि इसको अभी पैसे की जरूरत है, पैसे के लिए ये हमारे पास आया है. तो सर गोज कि ओके अभी पैसे देता हूँ मैं उसको. तो ही सेज खिशाकडे हात जाताच पटकन उठून म्हटला पैसे नको सर, जरा एकटेपणा वाटलं की सर आय डोंट नीड मनी, आय एम जस्ट फीलिंग अलोन. पैसे नको सर, जरा एकटेपणा वाटला. मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा, पाठीवरती हात ठेवून फक्त लढ म्हणा. कि मेरा संसार बह गया है लेकिन माय स्पाइन, आई हैव माय सेल्फ इस्टीम. संसार बह गया है बट माझा कणा मोडलेला नाहीये. आय डोंट नीड मनी, जस्ट ब्लेस मी की कीप फाइटिंग. सो पाठीवरती हात ठेवून फक्त लढ म्हणा. अँड दिस इज व्हॉट दीज लाईन्स आय ये जो लाइंस है ये मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी क्योंकि बहुत गंदे गंदे एक्सपीरियंस आए हैं लाइफ में, बट I never gave up and I am very happy and satisfied कि I never gave up. I kept on fighting and fighting and fighting and here I am now. एंड उसके बाद सर ने मुझे खुद की पोएम रिसाइट करने को बोली एंड आई थॉट दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू शो कि लाइक आई एम सोशली एक्टिव एंड आई एम what we can say because that poem was on rape. जो 9 years की छोटी बच्ची पे यूपी में रेप हुआ था एंड उसको जिंदा जलाया गया था, उस पे मैंने वो पोएम की थी. एंड उसमें रेप और आर्टिकल 21 का वगैरह मैंने जिक्र किया था उस पोएम में. सो थोड़ा स्मार्टली प्ले कर रही थी कि अगर ये मैं मेंशन करती हूँ तो देयर माइट बी अ चांस कि आर्टिकल 40 एंड 21 और रेप पे मुझे अगले क्वेश्चंस इंटरव्यू में आ सकते हैं. बट दे आर स्मार्टर देन मी, उनकी उतनी प्रैक्टिस है. आई वॉज जस्ट डूइंग माई स्मॉल ट्राई कि हो सकता है, बट नो, उन्होंने पूरा टॉपिक ही उधर चेंज किया. द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड मी कि वेदर आई यूज सोशल मीडिया और नॉट. आई एम लाइक यस सर, सोशल मीडिया का ही जमाना है, कौन नहीं यूज करता, सब यूज करते हैं. इतनी मैं फ्रैंक हो गई थी उस टाइम के, क्योंकि 5 मिनट हम पोएट्री पे ही बात कर रहे थे, तो मैं पूरी फ्रैंक हो गई थी. तो सोशल मीडिया में क्या यूज करते हैं, मैंने बोला सर व्हाट्सएप है और इंस्टाग्राम है, लेकिन इंटरव्यू अभी 5 दिन पहले ही पता चला कि इंटरव्यू है, कम टाइम था तो दोनों अनइंस्टॉल किया है अभी. ऑनेस्टली मैंने बता दिया कि सर अनइंस्टॉल किया है. ही इज लाइक गुड गुड, उनको अच्छा लगा कि आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद देम. तो ही आस्क्ड मी इंस्टाग्राम पे न्यूज पढ़ते हो, मैंने बोला हाँ सर पढ़ते हैं. तो रिसेंटली कौन सी न्यूज पढ़ी. तो मैंने 2 सेकंड का ना पॉज लिया कि आई थॉट, क्योंकि अभी तक मुझे एक भी लॉ क्वेश्चन नहीं आया था, तो आई थॉट कि यस दिस इज द टाइम एंड दिस इज द चांस कि मुझे अभी अपना कॉन्स्टिट्यूशन या एलएलएम के बारे में मैं उनको बता सकती हूँ, क्योंकि माय डिसर्टेशन हैपेंस टू
be on power of speaker in anti-defection law. And at that time, we didn't had a speaker for our Maharashtra Legislative Assembly, though we have him since yesterday, but tabhi nahi the. And governor and just a day before, Justice Dipankar Datta gave a statement on the relation between all these things which were going back then. So मैंने बोला कि सर ये न्यूज मैंने पढ़ी थी, बिकॉज आई वांटेड देम टू आस्क कि प्लीज मुझे डेजर्टेशन पे क्वेश्चन पूछो, बट नो वो क्वेश्चन भी नहीं आया. द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, आपको गुस्सा आता है क्या? नो लॉ क्वेश्चन, अभी तक नो लॉ क्वेश्चन. मैंने बोला हाँ सर, ह्यूमन नेचर है, क्योंकि इधर ऑनेस्ट होना ही था कि अगर गुस्सा नहीं आता है बोलते तो समझ जाते कि हम फेक है या झूठ बोल रहे हैं. मैंने बोला हाँ सर, ह्यूमन नेचर है, सबको गुस्सा आता है, मुझे भी गुस्सा आता है. तो फिर ही इज लाइक कैसे आता है, बहुत गुस्सा आता है या थोड़ा थोड़ा गुस्सा आता है? मैंने बोला सर थोड़ा थोड़ा गुस्सा आता है. And when I gave my mock interviews, my guide, he like every time he pointed कि I shouldn't do these hand movements. अभी भी आप notice करोगे तो मेरा हाथ बहुत ज्यादा ऐसे बोलते टाइम होता है. तो मैं पूरा इंटरव्यू ऐसे बैठी थी हाथ नीचे करके. एंड व्हेन ही आस्क्ड मी गुस्सा आता है क्या, कैसे आता है, हाउ डू यू कंट्रोल इट, आई लिटरली डिड दिस कि सर स्कूल में सिखाया था कि अगर गुस्सा आता है तो यू हैव टू टेक योर हैंड, विजुअलाइज दिस कि ऐसे करके इधर अंदर गुस्सा है या पेशेंस है, एंड अगर ये छोड़ दिया तो वो निकल जाएगा, you will be impatient, so you have to do this, count numbers till 10 and you can be patient again, और गुस्सा चला जाता है. So I practice this, ऐसे बोला. And he was like happy with that answer कि okay, yeah, you are being honest, and उनको अच्छा लगा. फिर पूछा किस बात का गुस्सा आता है, तो मैंने बोला सर इनजस्टिस देखने के बाद गुस्सा आता है. तभी थोड़ा डर लगा था कि ये आंसर, दिस माइट टेक मी टू सम कंट्रोवर्शियल थिंग्स, और मेरा ही कोई पीछे वाला आंसर कॉन्ट्ररी हो सकता है जो मैंने ये कहा है. फिर उन्होंने लास्ट में पूछा कि आप जिस पोस्ट पे जाने वाले हो वो आपका काम होगा जजमेंट देना, ना कि जस्टिस देना, और आपको गुस्सा आता है इनजस्टिस का, तो एविडेंस कलेक्ट करना या इन्वेस्टिगेशन ये आपके हाथ में नहीं है. तो जो भी फैक्ट्स है उस पे जजमेंट देना है. तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि यू नो दैट पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, बट ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस और इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आपको वो जजमेंट XYZ देना पड़ रहा है. तो तभी आप क्या करेंगे, तभी भी आपको गुस्सा आएगा. सो हाउ विल यू कंट्रोल दैट? तो यहाँ पे आई वॉज अ बिट टेंस्ड कि ओके, अभी ये आंसर शायद डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है. तो एक दिन पहले बॉम्बे हाईकोर्ट के जज का एक स्पीच पढ़ा था जिसमें जजेस के क्वालिटीज लिखे थे. तो वो किधर तो क्लिक हुआ कि जजेस शुड बी बैलेंस्ड. तो तभी मैंने वो याद आया कि सर जज की दो पर्सनालिटीज होती है, एज अ जुडिशियल ऑफिसर एंड एज अ ह्यूमन बीइंग. सो एज अ ह्यूमन बीइंग अगर मुझे गुस्सा आता है, सो आई हैव माय पोएट्री टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स, बट आई विल मेक श्योर कि आई बैलेंस बिटवीन मी एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज अ जज. एंड उसके बाद 3 लॉ क्वेश्चंस, व्हाट इज रेस जुडिकाटा, इंजंक्शन, एंड एक आईपीसी का था कोई क्वेश्चन, आई डोंट इवन रिमेम्बर दैट नाउ, ट्रांसक्रिप्ट्स में है मेरे क्वेश्चंस वो. ओनली 3 लॉ क्वेश्चंस, एंड इन 15 minutes वी रैप्ड अप दैट इंटरव्यू. एंड I came down, my father was there, my friend Sonali and Raj were there, and I was like, हो रहा है मेरा, I am completely confident कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि मेरे इंटरव्यू के 2 दिन पहले 2021 का प्रीलिम्स का एग्जाम था. एंड एवरीवन वाज लाइक तू तो वो फॉर्म भर ले, अगर ये अटेम्प्ट में नहीं होता है तो वो अटेम्प्ट में तो पक्का हो जाएगा. एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट ऑन माय मेंस कि नहीं, मेरा यही अटेम्प्ट में होगा, माय फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट, आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर माय सेकंड अटेम्प्ट. इवन माय गाइड, जब मैं निकल रही थी उनका आशीर्वाद लेके फॉर माय फाइनल इंटरव्यू, अ डे बिफोर माय इंटरव्यू आई वाज इन पुणे for my mock preparations, he also said me कि तू ना फॉर्म भरायला हवा होता. He also said me, and when he said me ना, I was a bit what I can say कि अरे सर भी बोल रहे हैं, हमसे गलती हो गई क्या, हमसे अभी ये नहीं होगा क्या.
but then sir only taught us in very first year when I was in Pune for my prelims class. He taught us to believe in yourself कि अगर आप खुद पे विश्वास कर रहे हो तभी दुनिया आप पे विश्वास करेगी. So I had that belief कि मेंस का अच्छा गया है. I had the belief on my hard work, efforts, writing practice, everything. So I'm like okay, किसी का मैं नहीं सुनने वाली हूँ. मैंने नहीं दी प्रीलिम्स, आई डोंट केयर, आई नो इंटरव्यू क्रैक होने वाला है. एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में वो हो गया. थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस, बाय टीचर्स ब्लेसिंग्स हो गया. And you cracked it and you nailed it. So, how has the reaction been afterwards? Because as I mentioned, your story is not just any other story. It is inspirational in itself because you have built yourself from scratch. And as I said before, you are the first judge from your district, and that too getting appointed at such a young age in your very first attempt. So, how was the reaction largely? Firstly, from your family, and then your friends, teachers, and everybody from your district. So 14th मार्च को इंटरव्यू हो गया. 14th मार्च से 24th मार्च तक 10 दिन इंटरव्यूज चलने वाले थे. 270 people candidates were there, so every day 30 candidates. 24th मार्च को इंटरव्यू खत्म होने वाले थे. सो हम सबका ऐसे था कि ओके 25th से वी विल वेट फॉर द रिजल्ट्स, कि अभी कभी भी रिजल्ट्स आ सकते हैं. एग्जैक्टली ऑन 24th इवनिंग 8 o'clock रिजल्ट्स आ गए थे. और मैं पीसीजीटी से निकल के, उस दिन मेरा कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी ही था इन यूनिवर्सल हाई स्कूल तारदेव. वो खत्म हुआ. इट वाज द वर्स्ट डे. स्कूल में सेशन अच्छा हुआ, बट उधर जाते जाते आई मेट विद एन एक्सीडेंट. उसके बाद मेरी तबीयत बिगड़ गई थी. सो आई वाज लाइक या इट इज द वर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ. एंड आई वॉज ट्रेवलिंग बाई ट्रेन. घर जा रही थी मैं. 8:30 का टाइम था. और मेरे एक फ्रेंड, हमारा ही जीएलसी का ही एडवोकेट जब्बार करके, ही वॉज ट्राइंग टू कॉल मी. हमारा एक और फ्रेंड है अनिकेत करके, ही टोल्ड मी कि जब्बार विल कॉल यू टू चेक अबाउट हाउ योर इंटरव्यू वेंट एंड ऑल. So I thought he is calling me with in that aspect to check how my interview went and all वगैरह. So as I was in train, मैंने उसको मैसेज कर दिया कि I will call you back. एंड मेरा नेट बंद था. सो जो पीडीएफ आई थी रिजल्ट की, वो भी मुझे नोटिफिकेशन नहीं आया था कि रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड वगैरह. मैं उतरी स्टेशन पे 8:30 8:45 को. एंड आई कॉल्ड बैक कि हाँ जब्बार बोलना. ही इज लाइक तेरा ये रोल नंबर है ना. मैंने बोला हाँ. इतने इतने मार्क्स आए हैं पेपर 1 और पेपर 2 में. मैंने बोला ओके, लेकिन कौन सी एग्जाम में? बिकॉज मुझे क्लिक ही नहीं हो रहा था कि ये मेरी एग्जाम जो अभी मैंने दी उसका. इज लाइक ये रोल नंबर भगत रुचि राजन सुधा. मैंने बोला हाँ, नाम भी बराबर है, रोल नंबर 20 ये भी बराबर है. इज लाइक भाई तुझे प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में इतने मार्क्स आए हैं, जेएमएफसी हो गई तू. मैंने बोला मतलब रिजल्ट लग गया? इज लाइक यस रिजल्ट लग गया है. किधर तू? मैंने बोला मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं थी. मैं फुटपाथ पे खड़ी थी, बैठ के उधर ही मैं 2 घंटा रो रही थी कि ओ माय गॉड. आई घर पे पापा को बताया, हस्बैंड को बताया, फिर इन लॉज को बताया, सबको. कॉल्स कंटिन्यू, रात के 2 बजे तक कंटिन्यूअस कॉल्स चालू थे. मेरे अंकल वगैरह गांव से, मैं तभी नवी मुंबई में रह रही थी, तो गांव से मुझे उधर घर पे रात के 1 बजे बुके एंड स्वीट्स लेके मिलने आए थे. दैट वाज लाइक द डे फॉर मी. 24th मार्च विच चेंज्ड माय लाइफ. 26th मार्च को when I went to my native village शाहपुर in अलीबाग तालुका in रायगढ़ district, लिटरली बैंड लेके लोग खड़े थे फॉर द फेलिसिटेशन. the video is there on my Instagram account. लोग बैंड बजा के मेरा पूरा वो सेरेमनी किया उन्होंने. फेलिसिटेशन. ऑल दोज दादाजी एंड चाचाज, पापा के फ्रेंड जिन्होंने मुझे बचपन से देखा है, दे स्पोक अबाउट मी, देयर मेमोरीज. एंड उसके बाद फेलिसिटेशन हुआ. फिर तब से जो शुरू है फेलिसिटेशन सेरेमनीज, वो शुरू ही है. बट आई कैन से ये जो पीरियड था, ये कभी मैंने इमेजिन नहीं किया था कि एग्जाम और रिजल्ट्स के बाद इतना लोग हाइप करेंगे. 2 दिन के लिए सबके व्हाट्सएप, लाइक इन आवर डिस्ट्रिक्ट सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेरे ही फोटोज और सबके किधर किधर से कॉल्स आ रहे थे. कुछ लोगों को तो मैं जानती भी नहीं थी.
but this was the love and affection and blessings which I got from my native people. गांव के जो लोग थे उन्होंने बहुत ज्यादा प्यार दिया. बट कभी कभी क्या होता है ना, हम ज्यादा बड़े होते हैं, वो कुछ कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आता. सो देयर वर सम ऑफ देम जिन्होंने लिटरली जिन्होंने आके पूछा कि तू सच में जज बन गई या फिर तू जज के हाथ के नीचे काम करेगी. सो आई वाज अ बिट शॉक्ड बाय देयर, क्योंकि क्या होता है कि मैंने ये बहुत ज्यादा फेस किया है. बहुत कम समझते हैं लोग हमें. मुझे तो काफी स्कूल डेज से ही ये मैंने बहुत ज्यादा. स्कूल में क्या होता था, मम्मी मेरी स्कूल में ही टीचर थी, तो कुछ भी मुझे अगर अवार्ड मिले या प्राइज मिलता था तो रिलेटिव्स वर लाइक ये मम्मी के स्कूल में है इसीलिए उसको प्राइज मिला. माय एफर्ट्स वर नेवर अप्रिशिएटेड बैक देन, एंड स्टिल देयर आर पीपल हु लुक मी थ्रू दैट लेंस कि इससे कुछ नहीं होगा. ये ऐसे सच में हुआ है क्या, लोगों को विश्वास नहीं होता है. बट एट दैट डे my mom, when she was there, she said only one sentence कि तू एक दिन इतनी बड़ी हो जाएगी कि लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि तू कितनी बड़ी हो गई है. So today she is not there. I completely miss her presence क्योंकि उसके teachings है, उसकी सारी positivity उसने मुझे build किया है. But today to see this success and this new phase in my life, she is not there. But ये जो सारे उनके जो शब्द हैं मम्मी के, वो आज सच हो गए हैं. मतलब आई कैन से. I'm sure your eye is proud of you. And I mean, you know, it's been so inspiring for me, I think, you know, because I was personally unaware about so many of the things, you know, that you have just mentioned, and I'm absolutely Would like to mention one more incident क्योंकि 3 साल ये एग्जाम चल रही थी. आई वॉज नॉट इन एनी रिलेटिव सर्कल. किसी फंक्शन में आई वॉज इन प्रेजेंट. गणपति हो, दिवाली हो, होली, हमारे यहाँ होली और गणपति का बहुत ज्यादा होता है. किसी भाई बहन के शादी में आई वॉज इन देयर. कोई फंक्शंस, आई वॉज कम्प्लीटली आउटसाइड ऑल दोज सर्कल्स. एंड व्हाट हैपेंड ना, थोड़ा थोड़ा मेरे पीछे कुछ स्प्रेड होना शुरू हुआ था कि ये ऐसे ही है, आने को क्या होता है, फंक्शन है, आना चाहिए, बीइंग अ गर्ल, और कितना सीखेगी, अभी शादी कर लेनी चाहिए. और ये सारे क्वेश्चंस मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पापा को डायरेक्टली कि इसको और मत पढ़ा. तो व्हेन आई टोल्ड माय रिलेटिव्स कि मैं एलएलएम करने वाली हूँ, मुझे मुंह पे बोला गया था बिकॉज माय फाइनेंशियल कंडीशन वाज बिट लो बैक देन इन कोविड. मुझे मुंह पे रिलेटिव्स ने बोला गया था कि तू एलएलएम मत कर. बट आई लाइक ओके, आई डोंट केअर. माय मॉम टोल्ड मी की तू कधीपासून लोकांचा विचार करायला लागलीस. सो आई नेवर थॉट ऑफ कि व्हाट लोग क्या कहेंगे के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा. एजुकेशन लोन लिया, आई डिड माय एलएलएम. और यही लोग, दिस इज लिटरली ट्रू शिवम, मेरे पास आज भी वीडियो है, यही लोग जिन्होंने मेरे बारे में समाज में बुरा भला स्प्रेड किया था, मेरे फर्स्ट फेलिसिटेशन सेरेमनी में माइक लेके बोल रहे हैं आज हमारे काल के नीचे थप्पड़ पड़ा है. ये उनके स्पीच में उन्होंने बोला है. एंड आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि आप ऐसे कहो या कुछ भी. बट समवेयर आई एम सेटिस्फाइड कि ओके, आई प्रूव्ड माई सेल्फ नाउ. तो ये एक्सपीरियंस था क्योंकि 9 months ऑफ माई एलएलएम घर पे वाईफाई नहीं था, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक थी. तो मैं कभी एक मौसी के घर 1 महीना, दूसरे मौसी के घर 1 महीना, मामा जी के घर पे 1 महीना, ऐसे करके 9 months का एलएलएम. और ये जेएमएफसी मेंस, इवन जेएमएफसी प्रीलिम्स का कोचिंग का तभी 9,000 ये था, फी था इन 2021. वो पे करने के लिए भी मेरे पास मेरा उतना फाइनेंशियल बैकिंग नहीं था. मेरे मामा ने उसके तभी फीस पे किया था. पुणे में रहने का 1 month का पूरा फाइनेंशियल हेल्प मामा जी ने तभी किया था. फॉर मेंस एग्जाम इट वाज सम अबाउट 9-10,000. तभी भी नहीं. आई प्लेस्ड माय गोल्ड चेन एंड देन आई वाज एबल टू गेट इन फॉर माय मेंस ट्यूशन. सो बिल्कुल ये स्ट्रगल इजी नहीं था. बहुत आई कैन से सबका, मेरे मामा मौसी, हस्बैंड, लाइक तभी वो वुड भी हस्बैंड थे, बट हस्बैंड, उनकी फैमिली, पापा, दादाजी मेरे बहुत सपोर्टिव थे. तो ये सबका आई कैन से मॉरल सपोर्ट, फिनेंशियल सपोर्ट
की वजह से आज मैं इधर आई हूँ. एंड ऑल्सो वो जो टिपिकल रिलेटिव्स जो शादी कब करेगी या और कितना पढ़ेगी, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इट केप्ट मी मोटिवेटिंग कि यहाँ रुकना नहीं है और आगे जाना है. Yes. So, and you have answered, everybody. But most importantly, I think more than shutting up your critics, you have set an example for anyone to just work at their goals relentlessly with absolute focus and not lose hope in adverse circumstances. And it has been so amazing, Ruchi, your journey. And I'm so happy for you. And I wish you the best of everything, really. And on that, I want to ask you now. Now things are, you know, all sorted. The goals have been achieved. So, how do you look at life now? Has your perception changed? Do you think that, as a judge, you will have so much opportunity to create a better society and uh, give justice to people who set foot, in your court? How much of thinking do you do about this as of now? Because you're going for your training in August, and then after that, you'll completely be into that mode. But just wanted to understand your space of mind right now, and how do you look at the future? Yeah. So a day before, me and my husband were having a conversation कि अगर यूपीएससी किया होता तो पूरा डिस्ट्रिक्ट तेरे हाथ के अंडर, मतलब तेरे अंडर होता, you would have more power तभी. What I told him is I'll be entering the lowest part of judiciary, जिधर I can do some experiments that can help me to expose various sides of this field, and I can use my creative mind or technological mind to solve the problems which our judiciary is facing right now. And ground level pe kaam karna is always the thing which I loved, be it in NSS or be it in PCGT. So judiciary ke lowest level mein, being at a taluka court or district mein bhi hoga, to JMFC is the lowest position in judiciary. So वहाँ पे जो भी experiments, if my seniors and the government permits me or allows me, so I'll have that space to do all those experiments. और अगर वो successful होते हैं, be it involving more use of technology, हम जानते हैं कि कोर्ट के हाल कैसे है अभी, the infrastructural part में भी और the delays में मीट बी. सो ऑल दीज इश्यूज इन जुडिशरी अगर मैं मेरे कोर्ट के लिए भी अगर सॉल्व कर पाती हूँ, तो I think I can set an example, or we can make other courts also to apply those solutions, because I really want सर हमेशा एक बात कहते थे कि पूरे देश में जो कुछ भी थोड़ा बार अच्छा चल रहा है हमारा, वो जुडिशियरी की वजह से चल रहा है. एंड आई ऑलवेज बिलीव्ड इन जुडिशियरी कि कुछ भी हो जाए, जुडिशियरी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वी आर इन राइट हैंड्स. सो मुझे उसमें थोड़ा फार काम करने का मौका मिलेगा, इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ. थोड़ा डर है कि इतने कम एज में इतनी बड़ी पोस्ट पे काम करना है तो कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि सीनियर लॉयर्स विल बी आर्ग्यूइंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट. बट कहीं ना कहीं बेरो सर के टीचिंग्स है, राजा सर का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस जो हमने वेबिनार्स के थ्रू, सर के स्पीचेस के थ्रू जो मिला है, जो नोटबुक्स में लिखा गया है, वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ भी यूज, आई कैन यूज देम. So currently I'm in this space right now. And Yeah. one more thing I would like to add is you said goals are achieved now. Day before yesterday I was also in the same mindset कि okay अभी हो गया है, अब क्या है, अब बस गवर्नमेंट सर्विस करनी है, that's it. On 2nd of July
was my convocation of LLM. I received my convocation in presence of Justice D.Y. Chandrachud and by hands of Justice V.V. Nagarthana ma'am. एंड द मोमेंट लाइक मैं ऑडियंस में बैठ के रो रही थी बिकॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू होल्ड दैट ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज इन फ्रंट ऑफ मी a small girl of age of 25 who is just about to enter the judiciary or judicial career is sitting there watching her in person receiving her degree by ma'am was something like no, my goals are not achieved. अभी विजन मिली है किधर जाना है. नाउ आई गॉट माय नेक्स्ट रोल मॉडल की ओके आई कैन बी लाइक हर. उनकी जगह पे मैं जा सकती हूँ ऐसे बिल्कुल नहीं, बट कहीं तो अभी नेक्स्ट गोल मिला है ऐसे हम कह सकते हैं. Awesome. Any advice that you would like to give to students who are preparing for the judiciary? I guess I have said much about it in while I was talking about mains, prelims, and interview. But what I would like to add is pursue your hobbies, because the hobby का question is the turning point in your interview. क्योंकि एक हमें example बताया था सर ने, एक aspirant थे, उनकी hobby थी trekking. उनको सिर्फ ट्रेकिंग के बारे में क्वेश्चंस पूछे थे, उनका रीसेंट ट्रैक पूछा था और बाद में पता चला कि द पैनलिस्ट डिड द सेम ट्रैक अ वीक बिफोर एंड ही वाज अवेयर ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स, बेस कैंप एंड हाइट कितनी एंड ऑल. सो आपकी ऑनेस्टी कौन से मोड में कब कैसे चेक की जा सकती है, वी नेवर नो. And when you are there for the interview, be polite to all the staff members also. आपको पता नहीं कौन किधर से कैसे कब आपको watch कर रहा है. So you have to be polite always, not only for the interview. And the thing which I have observed while preparing for competitive exam is competition between you and me and my friend. No, that's wrong. अगर वो 16 घंटे पढ़ रहा है तो मैं 17 घंटे पढ़ूंगा. No need man. अगर तेरा 10 घंटे में हो रहा है तो तू कल जाके सो जा. Not at all. No need to compete with others. Because मैं 3 बजे उठ के पढ़ती थी, 3 से 9 या जो भी मेरा शेड्यूल था. आपको भी वही फॉलो करना है, ये जरूरी नहीं है. See how you are comfortable, how your productivity is increasing, that is important. Not you are following a particular person or anyone like that. So that's my advice to the aspirants. Great. And any parting words of wisdom for the viewers of the podcast who are normally law aspirants and students? I would like to tell them कि अभी I'll be on this side and जो lawyers आएंगे या फिर it will happen कि मेरे friends भी हो सकते हैं जो who will be arguing in front of me and I'll be on this side. मैंने 2-3 चीजें observe की है recently, the trend, और I don't know, मेरा ज्यादा connection नहीं था प्रैक्टिस से, बट कुछ फैमिली मैटर्स के लिए मेरे अभी कोर्ट विजिट्स चालू थे. मैंने ये देखा है ना कि बहुत कम लॉयर्स ऐसे होते हैं जो रियली हेल्पफुल होते हैं या रियली वो उनके क्लाइंट के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं. पूरा एक व्हाट वी कैन से प्रोफेशनली या बिजनेस के एंगल से देखा जाता है. तो कभी कभी ऐसे होता है कि बेल एप्लीकेशंस के लिए जो श्योरिटी आता है वो बहुत दूर से उसको लेके आए होते हैं, या फिर कोई भी लोग बहुत दूर दूर से आपके लिए आते हैं विद होप कि यू विल सेट एवरीथिंग राइट फॉर देम. एंड उतने दूर से लोग आते हैं एंड यू विल से आज नहीं कल की तारीख, आज मुझे काम है, आई विल टेक एडजमेंट एंड कल आ जाओ. सो कहीं तो थोड़ा लोगों के बारे में भी सोचो. उन वो हमें पीस देते हैं, एवरीथिंग आई नो, बट somewhere above all is humanity and we are there for service. Being lawyers is a service. So ये कभी मैं बहुत छोटी हूँ ये सब बताने के लिए, but this is what PCGT has imbibed in me कि we are here to serve people. So ये आप जो भी budding lawyers है कि you can create an example कि you are here to serve people and please वो follow करो. That's my humble request. So that's a wrap. Thanks a lot, Ruchi, and thank you so much for your time
for answering all the questions in such detail and being so candid. A privilege that I have for a month. And more importantly, for inspiring our budding lawyers to strive for excellence and be more socially aware and responsible citizens, which is also the purpose of hosting the podcast. And I'm sure through this episode, many students will not only aspire to become judges, but they will also aspire to become better human beings and be authentic and have those qualities of confidence and positivity. So thanks a lot, Ruchi. Thank you, Shivam. Thank you. Thank you.